हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस का आज जो हम चैप्टर करेंगे इंट्रोडक्शन टू और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावना। यानी इंट्रो हम करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये पुराने समय के हर एक जो विषय के बारे में चर्चा करेंगे और हर के साथ जो सोशल साइंस का संबंध है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट ईयर ज्योग्राफी। Geography is most important according to social science here. The study of archaeology and history remain are incomplete without or now as something about the geography of the area began a study. There is an important point here. The history and archaeology is remain incomplete without a knowledge of geography on this area. Geography is the study of the earth, landscape, people, place, environment. There is an include of social science here. Landscape, people, place, environment. There is a part of geography, but related of a social science. In a simple term, it is now about their world in which we live. Geography is unique and bearings to be social science. There is human geography, with the natural science is a physical geography. There is a social science, means is a human geography, and natural science mean physical geography. Geography play an important role in us shaping the life and history of any society. Geography play an important role in us shaping the life and history of any society. It's a help us to recognize their difference in a culture, political system, economics, landscape and environment across the world. It also helps us to establish link among them. Geography provides as an idea framework for a relating to the other field of knowledge too. If we know the geography of a country, we can understand what happened in a history. There is a If we know the geography of a country, we can understand what happened in history. In this lesson, you will be read that is the earlier human is made a ball. The early human is made a ball around their other a small tool. It is a form of studying the geography that you get now. Why? After ice age, change in the environment must have taken place. As a result, many dense forests might has become a grassland. Can you imagine what must be have happened? Yes, it will lead to growth of population of a grass-eating animal like a deer, goat, sheep, and antelope. There is the most important here. You also know that this animal can run fast, so hunting them not be easy with a heavy weapon. This like the stone is a weapon, the stone weapon, which early human had invited helped them into their survival. Do you know that the Indo-Ganga plain is the most fertile land in India? Indo-Ganga plain is the most fertile land in India. This is because a big river like a
Ganga bearing on abundant supply of fresh water, drinking and irrigation. That is why this land has become the place for establishing big empire like those of Mauryas, Gupta and Mughal. There is the most important here, uh, Maurya, Gupta and Mughal. Ability of iron in the abundance further helped to the expansion of this empire. Can you guess why? You will be learn about more about the four lesson. There is a four lessons the most important for their ability of iron abounded to further help expansion to the empire. देखिए यहाँ पर जो है भूगोल, कि आखिर भूगोल जो है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो भूगोल का भी सामाजिक विज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। कहते हैं देखिए समाज समाज कहाँ पर रहता है, कोई भौगोलिक क्षेत्र में ही रहता है और वहाँ की दशा जो है उस समाज की विशेषताओं को दर्शाता है। कहते हैं भूगोल अगर अच्छी ना हो तो वहाँ पर जो है समाज का बसना भी संभव नहीं है। इसलिए देखिए अगर राजस्थान के साइड करें जहाँ पर इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक दशाएँ बहुत ही विपरीत है, तो यहाँ पर जनजीवन जो है बहुत ही कम दिखेगा। वही अगर बर्फीली क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ पर जो है विषम कंडीशन होती है, तो वहाँ जीव जंतु के लिए बसना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। मेघालय साइड भी ऐसे ही कंडीशन है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में, तो वहाँ जनजीवन जो है कम ही बसती है। अब देखिए कुछ क्षेत्र जहाँ पर अच्छी कंडीशन होता है वहाँ लोग अधिक बसते हैं, तो ये सब किसका पार्ट है? भूगोल का ही पार्ट है। कहते हैं भूगोल बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अगर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो भूगोल का अगर अध्ययन आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब वो अधूरा है, क्योंकि भूगोल ही आपको पता है कि इंसानों के रहने के लिए जो है सुव्यवस्थित स्थान प्रदान करता है। तो कहते हैं भूगोल इतिहास और प्राचीन ज्ञान का जो मधुर रहता है, प्राचीन ज्ञान का जो अधूरा रहता है। बिना वहाँ की जो है भूगोल जाने बिना हम वहाँ के बारे में नहीं जान सकते। तो इतिहास जो है प्राचीन ज्ञान अधूरा रह जाएगा अगर हम भूगोल का अध्ययन ना करें। भूगोल एक ज्ञान है जो कि ज़मीन का नक्शा, वहाँ के लोग, जगहों तथा वहाँ का वातावरण का ज्ञान हमें देता है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि भूगोल वह ज्ञान है जो हमें उन संसार के बारे में बताता है जहाँ हम रहते हैं, कि यहाँ पर जो है वातावरण कैसा है, हर्ष है, गर्मी वाला है, ठंडक है, कैसा है। तो ये सारी बातें में भूगोल ही बताता है। भूगोल एक ऐसा विषय है जो सामान्य ज्ञान के वास्तविक विज्ञान से जोड़ देता है, यानी सामान्य ज्ञान को वास्तविक ज्ञान से ही जोड़ता है। समाज एवं जिंदगी को बनाने में भूगोल एक ज़रूरी मुद्दा माना जाता है, क्योंकि भूगोल बहुत काफ़ी ज़रूरी है। यह हमें अलग अलग स्थानों, वहाँ का रहन सहन, राजनीतिक दशाएँ, अर्थशास्त्र, वातावरण का ज्ञान देता है। तो ये कौन ज्ञान देता है? भूगोल देता है। और यह आसपास में जोड़ने का काम भी करता है। भूगोल हमें दूसरी विषय का भी ज्ञान देता है। अगर हमें किसी देश के भूगोल के विषय में जानने हैं तो हम यह भी जानना चाहते हैं कि वहाँ के इतिहास में क्या हुआ है। यानी अगर हम भूगोल जान जाते हैं तो इतिहास के बारे में हमें कुछ पता लग जाता है। और इस पार्ट में हम यह जान पाएंगे कि प्राचीन युग में मनुष्य ने जो है धनुष, बाण और अन्य औजार कैसे बनाए, आखिर जो है वो कैसे शिकार किया करते थे। भूगोल पढ़ने से हमें यह ज्ञान होता है क्या वह बर्फ युग के बारे में वर्तमान जो है वातावरण के कोई बदलाव आया है, क्या वो बर्फ युग था। कहते इसी का परिणाम है कि कई घने जंगल समाप्त भी हो गए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा? तभी तो घास खाने वाले जानवर क्या, जैसे कि हिरन, बकरी, बेर, बारहसिंगा की जो है तादाद बढ़ी। अब यह भी जानते होंगे कि जानवर तेज भागते हैं और इस तेज दौड़ने वाले जानवरों के शिकार भारी पत्थरों से होना मुमकिन नहीं था। तो इसके लिए हमें हल्के हथियार चाहिए थे जो उसे युग की मनुष्य ने बनाए। तो कहते हैं ये सारे भौगोलिक कंडीशन हमें बताते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। क्या आप जानते हैं कि इंडो गंगा का मैदान बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है जो भारत में ही है। और यह इसलिए क्योंकि बड़ी नदी गंगा अपने साथ बहुत साफ पानी लाती है जो कि पीने और सिंचाई के काम में आती है। और यही एक वजह है कि बड़े बड़े साम्राज्य यहाँ पर बने, जैसे कि मौर्य साम्राज्य हो, गुप्ता हो, मुग़ल हो। लोहे की बड़ी तादाद में यहाँ पाने की वजह इन्हीं बहुत उन्नति थी की। और इसके बारे में हम अध्याय 4 में विस्तार पूर्वक जानेंगे। और ये सब तब होगा जब आप तिरपान सेंटर के साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अ सोशल साइंस। गवर्नमेंट इज
is a word which may be familiar. You often to hear and read about there in the newspaper or in the television. Have you ever thought about that is government is? Do you know that the role it plays in our lives and important things it does for the people? The government of country make a law and everyone living in the country has to be obeyed. This is a law. In a democracy, it is the people who give up power to the government when they elect them. In this way, people help to the parliament of country make a law. There is a people help to the parliament of country to make a law. Well, there is a monarchy. There is a monarch is the king of queen who had a power to make a decisions and enforce them. There is an important here. Monarchy is the monarch is the king and queen. There is a power to take a decision and enforce them. Social science also deal with the how we are governed, and it has helped to understand the role of people like us in the running of nation and government. This discipline is called it political science. There is a political science. अगला पॉइंट है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान का हमारा जो है समाजशास्त्र में क्या रोल है, आखिर सोशोलॉजी में सामाजिक विज्ञान में राजनीति का क्या महत्व है। तो आपको मैं भली भांति बता दूं इस बात के लिए कि जहाँ पर समाज है वहाँ पर राजनीतिक होना स्वाभाविक रहता है, और यही बात यहाँ पर दर्शाता है राजनीति विज्ञान। आपको शायद इस बात का नॉलेज हो कि सरकार एक ऐसा शब्द है जिसे आप जानते हो कि सरकार है, और सरकार वो होता है जो है लोगों को प्रभावित करता हो। एक बार रूल रेगुलेशन बना, सभी लोग प्रभावित हो गए, तो सरकार कहते हैं। जैसे पुराने समय में राजा जो है प्रजाओं को बहुत परेशान करते थे, बार बार जो रूल रेगुलेशन चेंज करते थे, वैसा ही सरकार होता है, जो मर्जी चाहे जैसा मर्जी चाहे आम नागरिकों पर थोप सकती है, और उसको हर एक को मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो इसी को सरकार कहते हैं। और कहते हैं सरकार देखा जाए तो सरकार क्या कार्य करती है। सरकार नियम बनाती है, रूल रेगुलेशन बनाता है, जिसको हर एक व्यक्ति को मानना पड़ता है, और उस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को वो नियम मानने पड़ते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जैसा मर्जी हो, सबको सरकार के द्वारा बनाया गया रूल रेगुलेशन मानना पड़ता है। प्रजातंत्र में आम इंसान की उस व्यक्ति को चुनते हैं जो मिलकर सरकार बनाते हैं। यानी प्रजातंत्र में देखिए जिसका बहुमत होता है उसी की सरकार बनती है, और सरकार बनाने में सबसे जो है अहम रोल है आम नागरिकों का है, और वही बाद में चल के हम पे रूल रेगुलेशन बनाते हैं। नियम सही भी नहीं होता फिर भी हम पे थोप देते हैं। तो सरकार को एनालाइज करना चाहिए कि वो कहते हैं ये पूरे देश ने उनको जो है चुना है, और उनको जो भी रूल रेगुलेशन बनाना है जनता के हित में विचार रखते हुए बनाना है, क्योंकि जनता ने ही उनको चुना है। और वो सोचते हैं उनकी 5 साल में जनता पर जैसे मर्जी राज कर लूँगा, तो संभवतः ये संभव नहीं है, क्योंकि जनता जब चाहे जाए सरकार गिरा भी सकती है, सरकार बना भी सकती है। इसलिए कहते हैं कि अपने हाथ को काटना कहीं से उचित नहीं रहता है। तो कहते हैं देश में जितने भी नियम रूल रेगुलेशन बनते हैं वो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। उस देश में जहाँ राजा रानी के जो राज्य होते हैं वहाँ पर जो नियम बनाए जाते हैं राजा या रानियों के द्वारा ही बनाए जाते थे, जैसे पुराने समय में बखूबी देखने को मिलता था। सामान्य विज्ञान का संबंध हमारे देश के सभी को चलाना चाहिए। सामान्य विज्ञान का संबंध हमारे देश को कैसे चलाना चाहिए इस बात पे डील करता है। यह समझना है कि सरकार और इस देश को कैसे चलाना है, और इसको हम राजनीति विज्ञान ही कहते हैं। यानी जो सरकार चलाने की जो पद्धति बताती है, जो बनाता है, उसी को ही राजनीति विज्ञान कहते हैं। यानी राजनीतिक करना हमारे समाज में। राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। राजनीतिक शास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान है जो कि राजनीति से हमारी जान पहचान कराती है कि राज्य करने के लिए कौन सी जो है राजनीति बनाने की आवश्यकता है, और यह हमें बनाता है कि सरकार कैसे चुनी जाती है। ये भी बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकार हमें कैसे चुनना चाहिए। राजनीतिक पंडित अध्ययन करते हैं कि राजनीतिक गतिविधियों और हालातों में क्या संबंध है, और इसमें सरकार जन समूह राजनीतिक संबंध और जो है राजनीतिक वर्तव्य के बारे में भी पता चलता है। अगर आप उच्च शिक्षा में राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि राजनीति शास्त्र कितनी विस्तृत है और राजनीति क्यों जरूरी है। राजनीतिक में हम हर एक पहलू पर जो है राजनीतिक में होने वाली गतिविधियों पर जो है अध्ययन करते हैं, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सब किसके अंतर्गत होता है? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत होता है। द नेक्स्ट है सोशोलॉजी। सोशोलॉजी देयर अकॉर्डिंग टू सोशल साइंस, व्हाट इज द रोल ऑफ सोशोलॉजी? सोशोलॉजी मीन्स is a society, social. The sociology is yet another very important part of social science. Sociology yet is another very important part of social science. It is a study of human behavior in a social context. There is a human behavior in a social context. Sociology is a focus on the study of human groups. Sociology comes from the Latin word sociology. Its literal mean to be study of companions, and sociology seek to understand the structure of society and how it works. It also seek to define and understand the different factor has been shaped our society, and this include race, class, gender, culture, religious belief of system, and government. Sociology also studies that way of individual and group behavior impact on the running of our society. There is the most important sociology in the role important of social science. अब देखिए समाज शास्त्र और सामान्य विज्ञान या सोशोलॉजी की बात करें तो दोनों काफ़ी हद तक मिलता जुलता ही है, क्योंकि समाज शास्त्र यानी सोशल साइंस, समाज शास्त्र भी एक बहुत ही ज़रूरी सामान्य विज्ञान का भाग है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर है कि समाज शास्त्र में हम जो है इंसानों के व्यवहार का जो है अध्ययन करते हैं, यानी देखा जाए समाज शास्त्र में इंसानों का क्या व्यवहार होगा, तो इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। समाज शास्त्र एक लैटिन शब्द सोशोलॉजी से बना है, जिसका मतलब अपने साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है, जो काफ़ी ज़रूरी भी है। यानी समाज शास्त्र हमें अपने साथियों के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। सामाजिक शास्त्र समाज को समझने तथा उसके काम करने के तरीक़े के बारे में हमें जानकारी देती है कि समाज कैसे कार्य करेगी, कैसे तरीक़ों से चलेगी, तो ये समाज शास्त्र का ही कार्य होता है। और ये हमें समाज को बनाने के लिए क्या क्या अन्य चीज़ें हैं उसकी भी जानकारी हमें देती है कि समाज में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब देखिए इसमें मेन मुद्दा यही आता है कि इसमें हम जात, लिंग की पहचान, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, सरकार भी शामिल होती हैं। तो समाज शास्त्र कई मायने में देखा जाए तो समाज में कैसा व्यवहार करना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, क्या हमारी सभ्यता है, क्या हमारा धर्म है, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमें बताती है। समाज शास्त्र में समाज को चलाने में एक अनेकों मनुष्य समूह कैसे वार्तालाप करते हैं उसके विषय में हमें अवगत कराता है। यानी समाज शास्त्र देखा जाए तो समाज को कैसे चलाना है इसके बारे में हमें अवगत कराती है। इसलिए समाज शास्त्र जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए। द नेक्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ईयर रिगार्डिंग सोशल साइंस, देयर इज अ रोल ऑफ इकोनॉमिक्स इन सोशल साइंस। लिविंग इन द सोसाइटी also mean that we must know how to organize our lives. We must know how to be incommise our income, time, resource, because all them are the limited. You must also learn to organize your time in such a way so that you can manage to do things you want. Similarly, when we make a budget from our home, we make the best use of sources which are available to us. We can avoid many of problems in this way. We call this study of economics. It's more than making a budget. The more than there is a making of budget. It is the scientific study of the way in which the human make a choose about the production, consumptions and wealth. There are three of way: production, consumptions and wealth. This become a very important when we are the faced with the limited means. It is a social science sticking a balance between need and available of source. Study this object will be a more interesting if you apply
the learning to be a real life of situation. One such activities could be make your household budget or a timetable. That is important. All this subject help us to understand how to ensure process of human process and development take place. For this, let us go back into our past. Step by step, we will be get to know about there is evolution of human beings on the earth. Do you know that we study about the revolutions, their evolution and the science too? But over there is a learn how to evolution to take place in a nature, how plant and animal involved. It is an interesting story how to most highly developed of a species. The human beings is developed from a less involved animals. Do you know that is the biological name of our species, human beings? You know, that's a Homo sapiens. Homo sapiens is the name of scientific of human beings. There is a biological name here, Homo sapiens. We are going to read about this Homo sapiens in the next section. देखिए आगे जो हमारा समक्ष आया अर्थशास्त्र। आखिर अर्थशास्त्र के जो है समाज विज्ञान में क्या महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है पैसे से रिलेटेड। समाज तभी चलता है जब पैसे होती है, और पैसे के लिए हर एक व्यक्ति जो है कार्य करती है, तभी समाज चलता है। अगर कार्य न करे तो समाज नहीं चलेगा। इसलिए अर्थशास्त्र का समाज में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। कहते समाज में रहने वाले का मतलब है कि हमें अपने जीवन को कैसे संगठित करना होता है। हमें कम खर्च में अपनी आय, समय और अन्य संचलित कोष का जो है प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह जो है सब सीमित होती है। क्योंकि हमें पता है कि हमें जितना कमा रहे हैं उसी बेस पे जो है हमें खर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब सीमित होते हैं। आपको यह भी सीखना चाहिए कि समय का सदुपयोग करना कार्य पूरा कर सके, कि ये समय का सदुपयोग करना बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और समय रहते कार्य को पूरा करना ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। इसी प्रकार जब हम अपना बजट बनाकर उस सभी वस्तुओं को सेवन कर सकें, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इससे हम अनेक परेशानियों से बच भी सकते हैं। आज व्यक्ति जो है बिना सोचे समझे मार्केट में जाते हैं, बिना सोचे समझे सामानों को खरीदते हैं, और बाद में उनके पास पैसे की कमी पड़ जाती है। तो ये सब बातें हमें उस समय सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें आज के लेकर देख के आगे भी हमें चलना पड़ता है। इसी विद्या को हम जो है अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी जो परेशानियों से हम बचते हैं, जो हम पैसों को जो है मेंटेनेंस करते हैं, तो इसी विद्या को हम जो है अर्थशास्त्र का नाम देते हैं। और यह बजट बनाने से भी अधिक है, और ये एक वैज्ञानिक विद्या है जो कि इंसान को बनाना, प्रयोग करना व धन के इस्तेमाल करने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें इसका ज्ञान अपने निश्चित साधनों का प्रयोग कर सकें, कि जो संसाधन हमारे समक्ष है उसका जो है भली भांति प्रयोग करना काफ़ी महत्व रखता है। और यह हमारी ज़रूरतों के साधनों के बीच में काफ़ी तालमेल बैठाता है, और ये भी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए समय का अगर सदुपयोग आप कीजिएगा तो इससे ज़रूरतों के साधनों के बीच में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर तालमेल बिगड़ता है तो पूरा बजट का सिस्टम बिगड़ जाता है। और इसका एक उदाहरण है अपना बजट या समय सारणी बनाना, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। कहते हैं जो व्यक्ति अगर आगे कामयाब होना चाहता है, इवन कि विद्यार्थियों में गुण होना चाहिए कि वो समय सारणी बनाए, और उन्हीं समय सारणी को जो है उपयोग करके जो है अपना अध्ययन करें। क्योंकि जब तक वो अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक समझेंगे नहीं चैप्टर को, तब तक उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है कि आजकल क्वेश्चन के जो बताई जाती है वो क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में नहीं आता, क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। और वो आप तभी एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाओगे जब आपको चैप्टर का भली भांति ज्ञान हो, समझ हो। इसलिए चैप्टर के लाइन बाय लाइन आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जो कि ज़रूरी भी है। ये सभी विषय हमें अपने जीवन की तरक्की के लिए ज़रूरी है, और ज़रूरत है हर एक बात को समझना। हम भूत में जाकर मनुष्य से कदम दर कदम कैसे तरक्की की जा सकते हैं, ये भी जरूर जानना जरूरी है कि भूतकाल में जाकर मनुष्य ने कदम दर कदम कैसे जो है तरक्की किया, और कैसे आज हम जैसे इंसान बन गए। ये बहुत बड़ी जो है बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर लेसन रहेगा। क्या आप जानते हैं कि विज्ञान के विकास भी हम अध्ययन करते हैं, यानी विकास के जो हुआ है इंसानों में उसका भी हम अध्ययन करते हैं। कैसे पेड़ पौधे और पशु विकसित हुए हैं,
क्या पहले ये इसी प्रकार के होते थे? क्या इनमें बहुत बदलाव आ गया है? तो ये बहुत बड़ी जो है क्वेश्चन चिन्ह है। क्या पहले से धर्म बने हुए थे? अगर हम आदि मानव थे तो क्या धर्म तो उसमें हो नहीं सकता? क्या आपको ये पता है कि जीव विज्ञान के मनुष्य का नाम जो है होमो सेपियंस कहते हैं, यानी साइंटिफिक टर्म में इंसानों को जो है होमो सेपियंस कहते हैं। अगर मान लीजिए कहीं जाइएगा आप और कहिएगा इंसान हमने देखा, तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने भी जो है होमो सेपियंस के बारे में ही अध्ययन किया है। इसलिए साइंटिफिक नाम जो है यहाँ पर होमो सेपियंस है। और कहते हैं आदि मानव कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, कैसे जीवन उनका होता था, कैसे वो जो है जीवों की जो है आश्रित रहते थे, कैसे उनका आश्रय होता था। तो इस सब विषय के बारे में जो है आगे हम अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए आपको तिरपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहने की आवश्यकता है और इसका हर एक पार्ट देखने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो है आदि मानव के अंतर्गत एसेंट टाइम के अंतर्गत बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें हम हर एक पहलू पर विचार करेंगे विस्तार पूर्वक। आपको अगर ये वीडियो समझ में आई, सारे जो है रिलेशन समझ में आया, तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा लगता है, आपको सारे टॉपिक अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ टॉपिक की कमी नहीं है। यहाँ 8 से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए। कभी ना कभी आपको तिरपान स्टडी सेंटर की जरूरत जरूर पड़ जाएगा, और ये मैं जानता हूँ। इसे सोचना नहीं है, अभी सब्सक्राइब कीजिए। देखने से कुछ नहीं होगा, जो बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का रेड, उसको जरूर दबा दीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ बताना चाहते हो, कोई राय विचार देना चाहते हो, कुछ बदलाव चाहते हो, तो कमेंट का भी ऑप्शन भी है, उसमें जाकर कमेंट कर सकते हो।